Oh, hello everyone. Welcome back to another video. This video will be discussing about use of AI and how do I see the future of AI. So recently मेरा एक एग्जाम था statistics का जिसका फाइनल एग्जाम में प्रोफेसर allowed us to use internet or any other AI, ChatGPT, Claude, Perplexity, whatever you want to use. You can use anything, any resource, just solve the question. And it really got me thinking how AI is shaping our future. I really wanted to discuss about it because a lot of people are arguing that it's very unethical to use AI. Well, I agree with them to some degree, but if you really use it in a very effective way, I think it's a game changer. If you look at the evolution of the knowledge, there was a time when internet was not there. Library, जहाँ पे आपको जाके all the books, all the research papers were there. Whenever you wanted to research about something, you have to go to the library, collect the books, collect the papers, read about them, get the knowledge. Then in the late 90s came the internet, जिससे कि सारी चीजें डिजिटल हो गई, चीजें ऑनलाइन आपको अलग अलग वेबसाइट्स पे मिलने लगी, and it became little easier than going to library and doing searching in all the 10 books, because now you can just do some sort of a search on Google and other search engines, right? And now currently we are in this era where I personally feel I am cutting down on my internet search as well, because we have fantastic AI models that can do that task for you. They are going to scrap all the information that is available in the internet, all the data that has been used to train those models, and is going to give you the answer precisely about what you want. That's the power we are talking about. The way I see it is, we are just cutting down on our surfing time. Earlier we used to go to library, do the whole process, get our information. Then came the internet. Now we have the AI models. That's one part of the thing that I'm talking about here, but there are a lot of other factors as well. Now if you see, all these models are trained on the data that already exists, right? किसी ने कोई बाहर से आके ये नहीं कहा कि यार ये ले लो AI मॉडल, ये ले लो ChatGPT, नहीं, ये सब यहीं ट्रेन हुआ है, right? इनमें बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स हैं. मुझे भी इतना स्पेसिफिकली नहीं पता है कि क्या ये मॉडल यूज करते हैं, बट आई डू नो समथिंग अबाउट डीप लर्निंग मॉडल्स. मैंने खुद में कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क CNN मॉडल्स को ट्रेन किया है. ये तो छोटे मोटे मॉडल्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, बट इन मॉडल्स को ट्रेन करके मुझे पता लगा कि हाँ, हाउ आई डू नो द बेसिक्स ऑफ हाउ दिस थिंग्स वर्क, राइट? तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है उसी को यूज करके इन सब मॉडल्स को ट्रेन किया गया, चाहे वो वीडियो जनरेशन मॉडल्स हो, इमेज जनरेशन मॉडल हो, या फिर जीपीटी का फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर. प्री ट्रेन्ड, पहले से ट्रेन करा हुआ ट्रांसफॉर्मर मॉडल जो कि आपको नेक्स्ट वर्ड का प्रेडिक्शन करके देता है. मुझसे पूछो, पहले भी ओपन बुक एग्जाम होते थे. मैंने मास्टर्स IISc में करा, वहां पे कई प्रोफेसर्स थे जो कि ओपन बुक एग्जाम लेते थे. द ओनली एडेड बेनिफिट दैट आई सी इज दीस AI मॉडल्स आर डूइंग इट सो फास्ट. तो मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में हम AI एजेंट्स को और ज्यादा यूज करेंगे, और ज्यादा इन पे रिलाई करें. ठीक वैसे ही जैसे हम इंटरनेट पे रिलाई, जब ये AI सब कुछ पिक्चर में नहीं था तो क्या हम कभी वेब सर्च नहीं करते थे? कोई भी हमें डाउट आता था, बीट कोड रिलेटेड और सब्जेक्ट रिलेटेड और स्टडी रिलेटेड, तुरंत जाते थे गूगल सर्च करते थे कि किसी ने कोई इसका आंसर दिया है क्या, इस कोड के इस बग को किसी ने सॉल्व किया है. Stack Overflow, Geeks for Geeks, ऐसी वेबसाइट पे जाके हम पहले भी सर्च करते थे. बट अभी वही काम अगर AI मॉडल्स आपको करके दे रहे हैं, इज केपेबल इनफ टू गिव यू द आंसर, गिव यू द रिस्पॉन्स इन अ वे सो दैट बिकम्स useful for you. And I think this is a wonderful thing. I personally feel that we are living in an amazing era. हर एक जनरेशन को अलग अलग चीजों का अनुभव करने का मौका मिलता है. हमारे पेरेंट्स को जनरेशन को मोबाइल का जो है ट्रांजिशन देखने को मिला. बहुत उनके लिए एक क्रेजी एक्सपीरियंस रहा होगा जब उनके टाइम पे मोबाइल आया होगा, यार टच स्क्रीन जब आया होगा तब उनके लिए भी एक वाव मोमेंट रहा हो. एंड हमारे लिए मुझे लगता है ये AI मॉडल्स एंड AI एजेंट्स का एरा आया है जिसमें कि हमारे लिए ये चीज वाव मोमेंट है. थिंक अबाउट अ चाइल्ड हु इज बोर्न टुडे और दिस ईयर. उसके लिए इट विल बी सो नॉर्मल कि उसको पता ही नहीं होगा यार इंटरनेट सर्च जैसी भी कोई चीज हुआ करती थी. मे बी इन द कमिंग 20 ईयर्स जब वो बड़ा होगा और जब वो कॉलेज वाले जा रहा होगा तो उसको लगेगा यार इंटरनेट सर्च कौन करता है, मॉडल्स का यूज करना है. जैसे हम बोलते हैं लाइब्रेरी कौन जाएगा. आप में से कितने लोग अब जाके बुक को बहुत अच्छे से ब्रीफली पढ़ते हैं? बहुत कम. ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो बेकार चीज है, बट मैं कह रहा हूँ कि हम ज्यादा यूज टू किस चीज के हैं, इंटरनेट सर्च एंड AI मॉडल. वी डोंट वांट टू गो टू द लाइब्रेरी एंड सिट देयर फॉर द होल डे रीडिंग ऑफ वन बुक. वी वांट प्रिसाइज एंड स्पेसिफिक answer to the question that we are asking to the models. You know what I think? I think the AI models are making our life more efficient and more effective. Honestly, it's amazing. The way I see AI is like a personal assistant. Let me introduce to somebody. Hey ChatGPT, I was just saying hi to my viewers and I want you to say hi to them. Oh, got it. Hello to all of Ash's viewers. It's awesome to connect. I've been using this thing for a while now. From writing scripts to discussion about career, it's my go-to tool now. So this is how the life have evolved. But I personally feel it's a game, and I know there are downsides as well. जो लोग इस पे इतना रिलाई कर रहे हैं कि वो सोचने की क्षमता को कम कर रहे हैं, उनके लिए it's a race to bottom. For example, the way I use AI is, जब मुझे कोई डाउट आता है, there's something that I want to learn about, मैं उससे पूछूंगा, वो मुझे आंसर देगा, उसके बाद मैं अपना रिसर्च भी चालू करूंगा और उसको और डेप्थ में जाके सीखने का ट्राई करूंगा. Even if it's about asking it to write
राइट अ कोड, वो कोड लिखने के आने के बाद मैं उसको पूरा एनालाइज करूंगा, देखूंगा, समझूंगा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि नहीं इसने क्या किया है। दूसरा इज व्हेन आई एम आस्किंग इट टू राइट अ कोड, मैं उसको ऐसे नहीं कहता हूँ कि मेरा ये प्रॉब्लम है, जस्ट राइट अ कोड फॉर मी। नहीं, इफ यू आर डूइंग इट, यू आर डूइंग इट द रॉन्ग वे। आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी सीखना पड़ेगा। मैंने भी 1-2 घंटे का एक कोर्स किया था, तब मैंने रियलाइज करा। मैं उसको कोड मॉड्यूल्स देता हूँ कि फर्स्ट हम ये करेंगे, सेकंड हम इस तरीके से डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे, थर्ड हम मॉडलिंग करेंगे, फोर्थ हम ये करेंगे, एंड देन आई गिव स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस ऑफ इट्स लाइक लिटरली राइटिंग अ कोड। बिकॉज अगर कोई भी कोड आप लिखना चाहते हो, द फर्स्ट स्टेप इज टू प्लान इट। कोड के ब्लॉक्स क्या होने वाले हैं, कैसे, यू डू इट ऑन अ पेन और पेपर। अगर आप जो भी लोग जानते होंगे, जो करते होंगे कोडिंग, उनको पता होगा। मैं भी अभी इसमें आया हूँ, इतना ज़्यादा एक्सपर्ट मैं भी नहीं हूँ, बट जो लोग कोडिंग करते हैं उनको पता है कि वो पहले सोचा जाता है। जो लोग पाइपलाइंस बनाते हैं एआई मॉडल्स की या मशीन लर्निंग मॉडल्स की, उनको भी पता होता है कि वो पहले एक ड्राफ्ट बनाते हैं कि पहले हम ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे। इट्स वेरी सिमिलर टू दैट। अगर आपको एआई से भी करवाना है तो यू नीड टू गिव हिम दैट प्लान। एआई मॉडल्स आपके लिए वो प्लान सोच भी सकते हैं, बट इफ यू रियली वांट अ वेरी नाइस आउटपुट, अभी भी आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आना जरूरी है। यही तो मैं कह रहा हूँ, हर नए ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आपको नई नई चीजें सीखनी पड़ती है। अभी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक नई चीज आ गई है। अभी आप केवल चैट जीपीटी गिव मी दिस कह के आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपको यू हैव टू बी स्पेसिफिक कि मुझे ये चाहिए, इतने वर्ड्स का चाहिए, आई वांट इन अ प्रोफेशनल वे, आई वांट इन अ फनी वे, तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो अगर आपने उसको यूज करना सीख लिया ना, तो मुझे ये लगता है कि इट्स गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। इट्स गोना मेक लाइफ वे सिंपलर, वेरी एफिशिएंट, एंड यू गोना सेव अ लॉट ऑफ टाइम। आई एम पर्सनली सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम। द वे आई एम एबल टू मैनेज ऑल ऑफ दिस along with my PhD is because I'm using AI models. तो ये था मेरा पर्सपेक्टिव, एंड आई वॉन्ट योर इनपुट एज वेल. आई रियली वांट टू नो हाउ डू यू थिंक AI is changing our life or shaping our future. That's it in today's video. I hope you like this video. I just wanted to share how I feel about the AI thing. That's it. See you in the next video. Till then, bye bye.